Hello everyone. In this lecture we are going to learn nomenclature of coordination compound IUPAC rules. So the first point, the cation is named before the anion. As usual, cation is always named before the anion. The second point, when naming a complex, ligands are named first. Whenever we want to name of a complex part, in a complex compound we can have two part. First one is complex part, second one is counter ion or ionization sphere, whatever present outside the complex part. So whenever we are naming a complex, ligands are named first in alphabetical order. Example, if we have this complex which is a neutral complex, it has only one part, complex 1, counter ion is not present. So in this case, if we want to write name of this complex, first we need to write a name of the ligand. So we have chlorine ligand here, nitrite and amine. So in this case, the name we need to write name in alphabetical order. So first we need to write amine, then we need to write chloro, after A we need to write C, then N, nitrito. So amine, tetraamine, tetraamine, chloro, nitrito, then we need to write name of platinum. So कुछ इस तरीके से नेमिंग होगी. Now whenever we want to write metal atom or ion, we have to write oxidation state of the metal atom in Roman numerals following the parenthesis. जो भी इसका oxidation state होगा, let's say in this example oxidation state of platinum is +2, so we need to write 2 in this manner in bracket after name of the platinum. So basically first we need to write the name of cation, then anion. In case of complex part, first we need to write the name of ligands in alphabetical order, then we need to write name of central atom with its oxidation state, and we don't need to use any space in the complex name. यहाँ पे किसी भी ligands के बीच में या central atom के बीच में space नहीं आएगा, continuation में naming आएगी. The name of anionic ligand end with the suffix O. Like if we have a name of the anionic ligand like sulfide, chloride, bromide, so हम उसको finally convert कर देंगे sulfide to sulfido, bromide to bromido, chloride to chlorido. So basically उनका name हमें end करना होगा O से, सारे जितने भी negative ligands है. If we have ligands like ite, like nitrite, so हमें उसे लिखना होगा nitrito. Again it ends with the O. Nitrite का nitrito. If we have like 8 will be converted into ato. Example, sulfate, sulfato, carbonate, carbonato. So whenever we are writing anionic ligand, so their whose name we need to write their name like O at the end. I to ido, I to ito, A to ato. Bridging ligands. If we have any ligands in the bridging form, then we need to denote mu. ये bridging ligands क्या होते हैं? Basically, whenever we have two central atom, let's say हमारे पास यहाँ पे cobalt atom है और इनके बीच में chlorine कुछ ऐसे bridging ligands हैं. So two central atoms हैं and we have bridging ligand here. So whenever we want to write name of this chlorine which is present in the bridge between the two central atom, तो हमें उसमें prefix mu लगाना होगा. So mu denotes the bridging ligands. इसके कुछ examples भी आएंगे अभी, वो भी देखते हैं. Neutral ligands are referred to by the usual name for the molecules. Like if we have neutral ligands, so we don't need to write anything for the neutral ligand. जैसे हमने negative ligands के लिए आइड किया था, यहाँ पे हम आइड को आइडो किया था, लास्ट में ओ किया था, न्यूट्रल लिगेंड एज इट इज आ जाएंगे. सो इफ यू हैव इथाइलिन डायमीन, सो एज इट इज इथाइलिन डायमीन आ जाएगा. इफ यू हैव वाटर H2O, एक्वा आ जाएगा. इनके लिए एक्सेप्शन इसलिए लिखा है बिकॉज वी डोंट नीड टू, वी आर नॉट गोइंग टू यूज देयर नॉर्मल नेम लाइक वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड. उनके लिए हम एक्वा, एमीन, कार्बोनाइल. रिमेंबर इन दिस चैप्टर एमीन वी नीड टू राइट डबल एम व्हेनेवर वी वांट टू राइट NH3. इफ यू वांट टू राइट इथाइलिन डायमीन, तो उसका जो एम आएगा वो सिंगल एम आएगा.
बट एमीन NH3 का M डबल M आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल, सो इसमें लास्ट में O जैसा सफिक्स नहीं आएगा इफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल्स। Greek prefixes are used to indicate the number of each type of ligand when more than one is present in the complex. So Greek prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa and so on. So whenever we have two ligands we need to use di. Let's say 2 chlorine are present, we need to use dichloro. 3 chlorines are present, we need to use trichloro and so on. So हम कुछ ऐसे ग्रीक प्रीफिक्स यूज करेंगे इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर मोर देन वन। sometimes in some ligands basically we already have di, tri like ethylene diamine, ethylene triamine. So जहाँ पर भी ऑलरेडी लिगेंड के नेम में ऐसा कुछ डाई ट्राई आ जाएगा then we need to use bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis and so on. If ligands name already contain a Greek prefixes, use alternative prefixes. बजाय bi के हम 2 के लिए यूज़ करेंगे bis, for tri we need to use tris. So हम यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे कन्फ्यूज़न ना हो, ऑलरेडी उसमें bi है लाइक इथाइलिन डायमीन, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे डाई इथाइलिन डायमीन, तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सो बजाय उसके हम जो इसमें लिखेंगे bis इथाइलिन डायमीन, tris इथाइलिन डायमीन, ऐसा कुछ लिखेंगे। The name of the ligand is placed in parenthesis. So जो भी ligand से जहाँ पे भी 2 या 3 या उससे ज़्यादा कुछ आएंगे तो हम उसको ब्रैकेट में रख देंगे। See the example. If a complex is an anion, its name ends with the 8. यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम हमेशा जो सेंट्रल एटम है उसको 8 से उसका नेमिंग एंड करेंगे। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। K पोटेशियम इज द केटायन काउंटर आयन एंड द कॉम्प्लेक्स हैज -1 चार्ज PtCl5 NH3 माइनस। सो सबसे पहले हमने केटायन का नाम लिखा पोटेशियम। अब बीच में हमने यहाँ पे गैप इसलिए दिया है बिकॉज केटायन एनायन को सेपरेट करने के लिए, बट विद इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ स्पेस। सो यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स को नोमेनक्लेट करेंगे, हमारे पास अमोनिया है, क्लोरीन है। सो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले अमोनिया आएगा, सिंगल अमोनिया है, 1 अमीन और 5 क्लोरीन है, पेंटाक्लोरो। सो एमीन पेंटाक्लोरो प्लेटिनेट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज 4, so we need to write 4 here in bracket, and the complex is basically has negative charge, it is anionic complex, so हमने प्लेटिनम को फाइनली किया है प्लेटिनेट। So it names end with the 8 whenever complex is an anion. हमें लास्ट में 8 ऐड करना होगा। प्लेटिनम है प्लेटिनेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, जिंक है जिंकेट, सिल्वर है अर्जेंटेट, गोल्ड है ओरेट। तो हमें लास्ट में 8 वर्ड ऐड करना पड़ेगा जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एनायन है, like this. Transition metal for like scandium, if it is in cationic complex or neutral complex हमें scandium लिखना होगा, but if it is in anionic complex we need to write scandate. टाइटेनियम यदि नॉर्मल cationic complex या neutral complex में है टाइटेनियम, but if it is present in anionic complex टाइटेनेट। सिमिलरली हम सारे कॉम्प्लेक्स को लास्ट में ऐड कर देंगे। फॉर वेनेडियम वेंडेट, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट एंड सो ऑन। So whenever complex is anionic, we need to add 8 word in the name of the complex. See some examples. Here example, first example, 5 amine. 5 amines are present. So 5 amines and one NCS group, that is thiocyanate group, and chlorine is present in the counter ion. So in the complex which is a cationic complex, हम यहाँ पे 8 से end नहीं करना होगा, normal आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 5 एमीन है, पेंटामीन आ गए, 1 आइसोथायोसाइनेटो है, NCS माइनस है, सो पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका हम यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें कोबाल्ट का, सो अमीन 0 चार्ज, NCS पे -1, इस पे -1,
Cl पे -1, 2 Cl है -2, सो तो कोबाल्ट पे आ जाएगा +3 चार्ज हियर. सो पेंटामीन, isothiocyanate, cobalt 3, then chloride. One more thing, we don't need to write डाइक्लोराइड हियर. जो भी काउंटर आयन है उसमें हम कभी भी डाई ट्राई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने क्लोरीन है बाय इट्स IUPAC नेम? ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिसाइड करेगा कि कितने क्लोरीन है, क्योंकि काउंटर आयन्स जो भी होते हैं जनरली वो चार्ज होते हैं. चार्ज होंगे तो वो सेंट्रल एटम पे चार्ज क्रिएट करेंगे. इफ़ यू आर राइटिंग पेंटामीन आइसोथायोसाइनेट हो तो पेंटामीन पे 0 चार्ज, आइसोथायोसाइनेट पे 1 चार्ज. यदि कोबाल्ट पे +3 है तो डेफिनेटली 2 क्लोरीन रहे होंगे. So by the oxidation state and the number of ligands present inside the coordination sphere, we can predict the number of ions present outside. So यहाँ पे डाइक्लोरो नहीं आएगा, सिर्फ क्लोराइड आएगा. Second case, 4H2O, 2 chlorines are present and the oxidation state of chromium, H2O पे 0 charge, chlorine has -2 charge. So chromium पे +3 charge आ जाएगा. +3 -2 net charge is +1. So the name of this complex, tetra aqua, 4 aqueous water molecule and 2 chlorine, tetra aqua dichlorochromium 3 ion. इसमें हमने आयन इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स. यहाँ पे यदि कुछ काउंटर आयन होता देन वी डोंट नीड टू राइट दिस आयन, हम उस काउंटर आयन का नेम लिख देते डायरेक्ट. सो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 ion. Complex is cationic here, so we don't need to write chromate. हमें सिर्फ chromium लिखना है because of cationic form of the complex. Next, K2HgI4. So here the HgI4 is basically the complex part. Potassium is present outside the coordination sphere. Potassium लिखा हमने, we don't need to write dipotassium. हमें वो oxidation state से ही पता लग जाएगा. Potassium tetraiodido और आइडो बोथ आर करेक्ट. हम आइडो भी लिख सकते हैं, आइडाइडो भी लिख सकते हैं. पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, हियर द कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द एनायनिक फॉर्म HgI4 2-. सो वी नीड to add 8 हियर एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स. चार्ज ऑन द Hg विल बी +2, सो वी नीड टू राइट 2 in the bracket. Potassium tetraiodido mercurate. There is no space between name of any ligand and central atom in the complex. Yeah, we can have space between cation and anion, but there is no space between any name of ligands and within the name of complex. Next one, Na2CrOF4. So सबसे पहले तो सोडियम आ गया. इसका कितने नंबर है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रेडिक्ट हो जाएगा. देन वी हैव ऑक्सो, ऑक्साइड. यहाँ पे एक हमारे पास लिगेंड है, फ्लोरीन लिगेंड है. सो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्लोरीन पहले आएगा. ध्यान रखना है जो टेट्रा हमने लिखा है, टेट्रा को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं डालना है, हमें फ्लोरीन और ऑक्साइड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है. सो सोडियम टेट्राफ्लोरो ऑक्सो क्रोमेट एज एनायनिक लिगेंड इज देयर, ब्रैकेट ऑक्सीडेशन स्टेट 4. Charge on sodium is +2, oxygen पे -2, fluorine पे -4. So chromium must have +4 charge in order to have 0 charge as a whole. Sodium +2, chromium +4, +6, oxygen -2, fluorine -4, -6. Net charge is 0 on the whole complex. Sodium tetrafluoroxochromate 4. Now one example of bridging ligands. Here 2 central atoms are present in this example. सबसे पहले यहाँ पे 2 इथाइलिन डायमीन है, देन कोबाल्ट, देन वी हैव 1 NH2- ग्रुप दैट इज इमाइड ग्रुप, OH- हाइड्रोक्साइड ग्रुप है यहाँ पे, देन अगेन कोबाल्ट एंड इथाइलिन डायमीन. सो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से. बिस इथाइलिन डायमीन, ऑलरेडी इथाइलिन डायमीन में डाया वर्ड है तो हम यहाँ पे बजाय डाया के यूज़ करेंगे बिस. सो बिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन को हमने पैरेंथेसिस में रखा है, ब्रैकेट में रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो. बिस इथाइलिन डायमीन, देन वी हैव सेंट्रल एटम कोबाल्ट 3, म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सोर, हाइड्रोक्साइडो, बोथ आर करेक्ट. हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं यहाँ पे. देन अगेन बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन. सो बेसिकली नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, हमने स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से,
bis ethylene diamine cobalt 3 mu imido mu hydroxo ethylene diamine cobalt bis ethylene diamine cobalt 3 आयन. यहाँ पे चार्ज है +3 चार्ज है आयन, और यदि ये नेगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स तो वी नीड टू राइट कोबाल्टेट इन बोथ द केस. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने दोनों का 3-3 डिस्ट्रीब्यूट किया है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. इफ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल एटम हियर तो हो सकता है उनके अनआइडेंटिकल भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स. अब हमें यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो उसके भी कुछ रूल है, बट ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉलो होते हैं. यदि क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दिया है और उसको इस रूल से नहीं दिया गया है तो हम वो भी गलत नहीं है. समटाइम्स इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं. सो कॉम्प्लेक्सेस आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है हमने. फर्स्ट पॉइंट जो हमें पहले से पता है, कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाता है. फर्स्ट द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम इज गिवन. तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को लिखते हैं. जो भी सेंट्रल एटम होगा नॉमेनक्लेचर में उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, बट फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा जाएगा. फॉलोड बाय द फर्स्ट एनायनिक लिगेंड, देन न्यूट्रल लिगेंड एंड देन cationic ligand if it is present. Each group they are alphabetically ordered according to the first character of their formula. So chlorine यहाँ पे आ गया C2H4, then NH3, C2H4, NH3 both are neutral. तो सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड को लिखा क्लोरीन को. अब यहाँ पे जो इथेन और अमोनिया है उसको फिर हमने इस मैनर में लिखा है C2H4 and NH3. सेकेंड K2PdCl4, देन थर्ड COEN3 होल Cl3. अगेन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए हमें. नाउ सम एग्जाम्पल. नाउ ट्राई टू राइट द फॉर्मूला, द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे पॉज करो और चारों के एक बार खुद से नाम लिखने की कोशिश करो. चलो देखते हैं हम वन बाय वन. K2ZnOH4. सो K2ZnOH4 पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 2. पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2. सेकेंड हमारे पास क्लोरीन है, साइनाइड है, नाइट्राइट है, एमीन है. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अमीन. 3 अमीन है, ट्रायमीन. उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होगा ट्रायमीन, देन क्लोरो, ट्रायमीन, क्लोरो, साइनो और साइनाइडो, नाइट्राइटो और नाइट्रो, बोथ आर करेक्ट. सो ट्रायमीन, साइनो, क्लोरो, नाइट्राइटो, कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3. सो क्लोरीन पे -1 चार्ज है, CN पे -1 चार्ज है, NO2 पे -1 चार्ज है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ जाएगा. ट्रायमीन, क्लोरो, साइनो, नाइट्रो, कोबाल्ट 3. क्लोरो, क्लोराइडो बोथ आर करेक्ट. साइनो, साइनाइडो बोथ आर करेक्ट. नाइट्रो, नाइट्राइटो बोथ आर करेक्ट. हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट वन PTPY4, PTCl4. यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स हैं. सो फर्स्ट हमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का लिखना होगा. 4 pyridines आर प्रेजेंट. सो टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम 2, देन टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2. सेकंड एनायनिक लिगेंड में हमने प्लेटिनेट किया है और कैटायनिक लिगेंड में प्लेटिनम किया है. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2 फॉर बोथ. पिरिडीन पे 0 चार्ज होगा, क्लोरीन पे -4. सो टोटल चार्ज ऑन टू प्लेटिनम विल बी +4. या तो प्लेटिनम +2 में होता है या +4 में. तो डेफिनेटली यदि हमने एक को +4 रखा दूसरा 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो दोनों को +2 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. सो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैटायन एनायन में वो कुछ जनरल उनकी इन्फॉर्मेशन हमें पता होगी, उसके बेसिस पे हम करेंगे. फोर्थ वन पोटेशियम. सबसे पहले आफ्टर पोटेशियम वी हैव हियर साइनाइड ग्रुप. देन दिस ऑक्सीजन इज बेसिकली डाई ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे फिर एक और O2 को ब्रैकेट में लिखा है. जब हम एक और O2 को ब्रैकेट में लिखते हैं तो बेसिकली वो परऑक्सो होता है. सो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज पोटेशियम एमीन डाइसाइनो
डाइसाइनो डाइसाइनाइडो डाईऑक्सो, यहाँ पे दो ऑक्साइड ग्रुप हैं, डाईऑक्सो पर ऑक्सोक्रोमेट। सो एक O2 माइनस है और एक पर ऑक्साइड है, O2 2 माइनस है, क्रोमेट 6। अच्छा, अब हमें कभी कभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा हाउ टू राइट लाइक दिस आर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड कैसे पता लगेगा, तो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगेगा। अब सेंट्रल एटम का यदि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो क्रोमियम का जनरली +3 +6 ये दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। पोटेशियम पे +2 चार्ज आ गया, Cn पे -2, ये बैलेंस हो गया, एमीन पे 0 चार्ज। अब क्रोमियम पे हमें या तो +3 देना है या +6 देना है। सो ये जो हो गया वो हो गया ऑक्साइड -2, तो ऑलरेडी क्रोमियम पे +4 आ गया बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन। अब बचा 2 चार्ज, तो ये जो O2 ब्रैकेट में होगा बेसिकली ये पर ऑक्साइड हो जाएगा, O2 2-। क्लियर? ये सुपर ऑक्साइड भी पॉसिबल था, बट क्रोमियम का जो +5 ऑक्सीडेशन है दैट इज नॉट दैट मच स्टेबल। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक रफ आइडिया होगा, उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, ब्रैकेट में जो लिखा है। Now some example how to write formula if IUPAC names are given. So bis acetyl acetonato. So 2 acetyl ACAC groups are present. Oxo 1 oxide group is present. Vanadium 4. So ये कुछ उसका formula आ गया, 1 oxygen and 2 ACAC group. Pentaamine carbonato cobalt 3 chloride. 5 amine groups are present. यहाँ पे बीच में गैप दे रखी है, वो नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। सो कार्बोनेटो एक कार्बोनेट ग्रुप आ गया एंड क्लोराइड। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कितने क्लोराइड है? एमीन पे 0 चार्ज, कार्बोनेट पे -2 चार्ज, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो डेफिनेटली एक क्लोरीन होगा आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पे दे रखा है। थर्ड वन सोडियम टेट्रा साइनो नाइट्रोसाइल सल्फाइडोफेरेट। सो यहाँ पे हमारे पास 4 CN ग्रुप है, CN- और नाइट्रोसाइल सल्फाइड NOS ग्रुप है हमारे पास, और आयरन है +3 में। सो चार्ज ऑन द CN- इज -4, NOS पे -1, -5 चार्ज हो गया, आयरन इज +3, +3 -5 नेट चार्जेस, सॉरी NOS इज न्यूट्रल, सो NOS इज न्यूट्रल, CN पे -4, आयरन पे +3। यहाँ पर हमारे पास चार्ज होगा टेट्रासाइनो 4 -4, आयरन पे हो गया हमारे पास +3, तो +3। ये कुछ गलत लिखा हुआ है थर्ड वाला, थर्ड का आंसर ये नहीं होगा। यदि हम देखें टेट्रासाइनो, तो टेट्रासाइनो में -4 नाइट्रोसाइल साइनो नाइट्रोसाइल मतलब ये न्यूट्रल हो गया, 0 चार्ज हो गया। देन सल्फाइडो, अच्छा ओके, यहाँ पे एक्चुअली NO अलग है और सल्फर अलग है, ऐसा कुछ है। सो NO और सल्फर दो डिफरेंट है, NO पे 0 चार्ज, सल्फर पे -2 चार्ज। सो CN -4, सल्फर -2, सो ये -6 चार्ज हो गए। आयरन पे +3 दे रखा है, हैंस वी हैव 3 सोडियम एटम +3। ये इसका कुछ फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट डाइक्लोरो बिस यूरिया कॉपर 2। सो यहाँ पे 2 क्लोरीन है हमारे पास और यूरिया का फॉर्मूला आता है NH2CONH2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। सो बिस दैट इज 2 डाइक्लोरो बिस यूरिया, हमारे पास 2 यूरिया ग्रुप है, सो 2 क्लोरीन एंड 2 यूरिया ग्रुप, एंड कॉपर इज इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो एज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा बिकॉज ऑफ -2 2 क्लोरीन पे चार्ज और कॉपर पे +2 चार्ज। देखते हैं इसका फॉर्मूला हम। सो कॉपर NH2 twice, that is NH2CONH2 whole twice Cl2, ये उसका कुछ फॉर्मूला हो जाएगा।